हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम आरटीपी जनवरी 25 एग्जाम की जो आईसीएआई ने रिलीज की है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आरटीपी में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक केस सिनेरियो दिया हुआ है और जो अभी रिसेंट में सितंबर 24 का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी टोटल 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आए हैं और 15 में से 12 क्वेश्चन केस स्टडीज के हैं और 3 क्वेश्चन जनरल एमसीक्यूज हैं। तो केस स्टडी की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एमसीक्यूज। केस की बात करते हैं। जॉय लिमिटेड, a company engaged in the business of tracking essentials, appointed CA Raj as the statutory auditor for the year. Due to large volume of transactions, जो कीवर्ड्स आपको नजर आए उन्हें अंडरलाइन या हाईलाइट करते रहिए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस हो रही हैं कंपनी में। The audit engagement team of Raj realized that it would not be feasible to audit each transaction separately. Each transaction को separately audit करना feasible नहीं होगा। Therefore, engagement partner decide to apply audit sampling techniques. Random number tables were used for selection of sample for power, telephone and fuel charges. No structured method of sampling was used for office stationery. Transaction exceeding 8,000 were selected for travel expenditure. The first 200 sales invoices from the sale book for the month of July were selected for the sales. तो ये वाला पार्ट तो प्राइमरीली किसके ऊपर आ गया? SA 530 ऑडिट सैंपलिंग टेक्निक्स। रैंडम नंबर टेबल्स जिसको आप रैंडम सिलेक्शन का नाम देते हैं। नो स्ट्रक्चर्ड मेथड, हैफेजर्ड सैंपलिंग। ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 8,000 वर सेलेक्टेड फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस, मॉनिटरी सैंपलिंग। फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइसेस एक ब्लॉक सेलेक्ट किया गया है, पूरा ब्लॉक सैंपलिंग। मिस्टर सुरेश, वन ऑफ द टीम मेंबर, कंपेयर the salary expense incurred by the company during the current year with those of the previous 5 years. He noticed a significant percentage increase in the expense. एक unusual increase identify किया गया है सैलरी के एक्सपेंस में। raises doubt in his mind. He decided to compare such an increase in salary with increase in the number of employees. तो बेसिकली ये किसके ऊपर आ गया? SA 520 के ऊपर। That is analytical procedure which says analytical procedures involves consideration of comparison and the relationship. यहां पर कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन of a financial item with the previous year information or the industry average or anticipated or budgeted figure. एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन कहती है एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन दैट इज टू बी कैरिड आउट फॉर अनयूजुअल आइडेंटिफिकेशन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। तो यहां पर ऑडिटर को अनयूजुअल इंक्रीज आइडेंटिफाई हुआ जिसके कारण उसने सैलरी एक्सपेंस के इंक्रीज का कंपेयर करना सोचा विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। दैट अगेन विल फॉर्म पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कंपनी इज हैविंग वेयरहाउस एट 2 locations. CA Raj is planning to attend the physical inventory count process. Inventory includes finished products,
like tracking jackets, bags, shoes, raw material like leather, cloth, chemical. Some inventory is also held by the third party. During a discussion among the team members regarding the sufficiency and appropriateness of the audit evidence, they agreed that sufficiency is the measure of quantity of audit evidence and appropriateness is the measure of quality of audit evidence. बिल्कुल सही। ये सब बातें लिखी गई हैं ऐसे 500 में। और जो ऊपर फिजिकल वेरिफिकेशन की बात हो रही थी कि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, इन्वेंट्री का फिजिकल एग्जामिनेशन जब मैनेजमेंट कर रही है तो ऑडिटर उस टाइम पर फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को अटेंड करता है। तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को डिटरमिन करने के लिए एसए 501 के अंदर प्रोसीजर्स बताए गए हैं। तो एसए 500, 501, 520, 530 इन चार का जिक्र तो आ चुका है अभी तक। J Limited operate 100 stores on rented premises across the country and is in the process of expanding. Although the rent expense have been accounted, auditor requested the management to provide all active rent agreement for the year. तो सारे के सारे रेंट एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर रखी है, बट स्टिल ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया है किसका? रेंट एग्रीमेंट्स का फॉर द डिटेल्ड एग्जामिनेशन। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक एक क्वेश्चन को स्टडी करिए, उसके बेसिस पर रिलेटेड केस स्टडी में जो रिलेटेड पॉइंट्स है इस केस स्टडी के अंदर उन्हें आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर सेलेक्ट करिए। विच ऑफ द सैंपलिंग टेक्निक वर यूज्ड for the following transaction? Power, telephone and fuel. Power, telephone and fuel के लिए random number table, random selection को यूज किया गया है। ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज नहीं किया गया, हैफेजर्ड। इन दो से भी आपको आइडिया लग जाता है। रैंडम, सिस्टेमैटिक गलत, सिस्टेमैटिक गलत, रैंडम हैफेजर्ड, रैंडम हैफेजर्ड। अब मेरे पास चार में से दो बच गए। ट्रेवल एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंडिचर था मेरा मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग 8000 से ज्यादा, हाई वैल्यू। लो इन्होंने यहां पर भी पंगा कर दिया, एक पॉइंट और छोड़ दिया, उस पे भी जाना ही पड़ेगा। सेल्स, सेल्स में फर्स्ट 200 ट्रांजैक्शन ब्लॉक सैंपलिंग, आंसर सी। तो रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? जहां पर रैंडम नंबर जनरेटर या रैंडम नंबर टेबल्स को यूज किया जाता है। हैफेजर्ड सैंपलिंग, नो स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ सैंपलिंग इज बीन यूज्ड। Monetary unit sampling, that sampling which focus on the high value transactions. Block selection, where samples are selected in a manner that continuous items are selected for the purpose of examination. Which audit procedure was Mr. Suresh intended to perform by comparing the salary expense? कंपैरिजन आता है एनालिटिकल प्रोसीजर पे। एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स कंसीडरेशन ऑफ कंपैरिजन एंड कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। कंपैरिजन एक फाइनेंशियल आइटम का विद द अनदर फाइनेंशियल आइटम ऑफ previous year figures, industry average, anticipated results, budgets, relationship with another financial item or non-financial item. Test of details, test of details of transactions is known as the vouching. Test of balances, it is known as the verification of assets and liabilities. Test of control, known as the compliance procedure that are used to evaluate the
इंटरनल कंट्रोल्स। यहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर क्या है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ राज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज। ऐसे क्वेश्चन जहां पर यह कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन आपकी रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉइंट गलत है और 3 सही है। तो उसी पॉइंट पर यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है तो आपकी ये प्रैक्टिस, ये रिवीजन आपको हेल्प करेगी। अब क्वेश्चन है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी के रिलेशन में देखिए, क्या ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री हेल्ड बाय देम? बिल्कुल सही, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मांगी जा सकती है। CA Raj should perform independent valuation of the inventory solely on the basis of company internal record. Inventory that is lying with the third party, उसकी independent valuation मेरा एरिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली यही पाएगा। बट सी और डी पॉइंट पढ़िए और यहां से याद रखिए कि थर्ड पार्टी के पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 501 ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, ऑडिटर may request the external confirmation from the third party as to the quantity and condition of the inventory held by them. CA Raj should request the third party to allow him to physically inspect the inventory. तो पहला प्रोसीजर आ गया, obtain confirmation from third party. Number 2, physical inspection of the inventory if allowed by the third party. Number 3, review the terms of agreement between the company and third party to understand the responsibility related to the inventory management. तो यदि इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस, कंडीशन, वैल्यूएशन के पर्पसेस के लिए ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी, फिजिकली इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री इफ अलाउड बाय द थर्ड पार्टी, रिव्यू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द company and the third party to understand the responsibilities related to inventory management. तो एक descriptive क्वेश्चन की भी हमने यहां रिवीजन कर ली है। आगे बढ़ते हैं। What audit procedure was used by CA Raj while collecting all rent agreement? 4 वर्ड दिए हुए हैं। इंस्पेक्शन होता है, एग्जामिनेशन ऑफ records, documents, plant facilities, analytical procedures, that is comparison and relationship, reperformance, performing the control procedures that were originally designed, implemented and maintained by the entity, observation, to look after the or to look over the processes that are applied or followed in the entity. यहां पर राज रेंट एग्रीमेंट कलेक्ट कर रहा है, वो उसे एग्जामिन करेगा कि कितना रेंट है और कितना बुक्स में डाला गया है। तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां कोई परफॉर्मेंस चेक नहीं हो रही और किसी प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। रेंट एग्रीमेंट की इंस्पेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट, इन द गिवन केस द ऑडिट टीम ऑफ राज discuss the sufficiency and appropriate. In this context, Joy Limited audit, the team was considering the various factors affecting the sufficiency of the audit evidence that gathered for large value transaction. Which of the following is not a factor? अब देखो, अगेन ये जो क्वेश्चन है, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं पहले भी कई बार आपके साथ ये बात करी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस हड़बड़ी में मत करिएगा।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ड्यू टाइम दीजिएगा, इस बहाने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। जैसे एक कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज किया, एज पर एसए 501 इफ द इन्वेंट्री इज लाइंग विद द थर्ड पार्टी व्हाट शुड बी द ऑडिटर प्रोसीजर्स। अब आ जाएगा कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। क्या मटेरियलिटी अफेक्ट करती है? हां। क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अफेक्ट करेगा? बिल्कुल। मटेरियलिटी ज्यादा है तो सफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, रिस्क ज्यादा है तो सफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ज्यादा है आपको सफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है, आपको सैंपल साइज, आपको क्वांटिटी, सफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। बट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं वो मेरा एरिया नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं वो मेरी सफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करता। तो देखो 3 नंबर का आपने एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो इस केस स्टडी के थ्रू आप 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर कर आए हो। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे रिवाइज हो गए, बट 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी आपने प्रैक्टिस करी है, एक एसए 501 की और एक एसए 500 की। कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस? फैक्टर नंबर 1 that is materiality of the transaction, factor number 2 risk of material misstatement, factor number 3 size, factor number 4 population, sorry, characteristics of population. साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना साइज ज्यादा होगा उतना आपको सैंपल्स, उतने आपको सफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। पॉपुलेशन हेटेरोजीनस है तो आपको सफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन यदि पॉपुलेशन होमोजीनस है तो आप अपने इसको कम कर सकते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही आपको सफिशिएंसी, क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर 2 एसए 501, एसए 501 इसके अंदर क्या बात की गई है? ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू इन्वेंट्री, इन रिलेशन टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन, इन रिलेशन टू लिटिगेशन एंड क्लेम। तो ऑडिट एविडेंस इन्वेंट्री का, यदि इन्वेंट्री इफ इट इज हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, तो आपके प्रोसीजर्स में क्या क्या आ सकते हैं? यू मे रिक्वेस्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यू मे फिजिकली इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, you may review the terms of agreement. Between the company and the third party to understand the responsibilities of management. तो ये हमने 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहां पर स्टडी कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जनरल एमसीक्यूज आ जाते हैं। C.A. Sumit, during the process of assembling the audit file, after the completion of the audit, briefed his team about the changes to be made in the audit documentation. Which of the following changes can be made during the audit file assembly? क्या हम असेंबली स्टेज के दौरान अपने वर्किंग पेपर्स को सॉर्ट कर सकते हैं, कोलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। असेंबली प्रोसेस के दौरान वर्किंग पेपर्स की सॉर्टिंग, कोलेशन, क्रॉस रेफरेंसिंग,
सब की जा सकती है। नंबर 2, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट। सुपरसीड मतलब यदि कोई ड्राफ्ट था, उसके बाद आपने उसको फेयर कर लिया, तो जो सुपरसीड कर गया फेयर है उसको तो रखो, जिसको सुपरसीड किया गया ड्राफ्ट उसको हटा दो, डिलीट कर दो। बिल्कुल किया जा सकता है, दोनों सही है। रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो एक एक्टिविटी हो गई, रिकैलकुलेशन तो एक ऑडिट टेक्निक हो गई। ये तो आप ऑडिट फाइल की असेंबली प्रोसेस में नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिकैलकुलेशन, अरे ये भी ऑडिट टेक्निक हो गई। आपको ध्यान है ना, ऐसे 500 में जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये सारी एक्टिविटी आपके ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले की होती हैं, जब आपने एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। अब आप उन एविडेंसेस को सिर्फ असेंबल कर रहे हैं एक फाइनल ऑडिट फाइल के दौरान, तो ये चीजें थोड़ी करोगे आप। सॉर्टिंग कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते आप, डेप्रिसिएशन की, इंटरेस्ट की। साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन चेकलिस्ट, ये तो करोगे ही करोगे। कंप्लीशन चेकलिस्ट की असेंबली प्रोसेस के दौरान ये एक्टिविटी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, उनको टिक ऑफ करना, साइन करना। तो अब देखो, अगेन एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी हो गई आपकी। फाइनल ऑडिट फाइल के असेंबली प्रोसेस के दौरान आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? मैं सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ वर्किंग पेपर कर सकता हूं, डिलीशन और डिस्कार्डिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूं, साइनिंग ऑफ द कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू फाइल असेंबली, ये किया जा सकता है। ए बी ई, पहला ही पॉइंट सही है। नेक्स्ट, C.A. Rao is conducting an audit for the ABC Limited, a large client. He is informed by the client CFO that if they report certain deficiency, the auditor firm may not be considered for future engagement. This is a threatening. कि हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे यदि आपने डेफिशिएंसीज को रिपोर्ट किया, ऑडिट रिपोर्ट में डाला। विच टाइप ऑफ थ्रेट डज दिस सिनेरियो रिप्रेजेंट? क्या ये फेमिलियरिटी थ्रेट है? नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेट होता है वो रिलेशनशिप जिसके कारण ऑडिटर बिकम टू सिंपैथेटिक टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द क्लाइंट। क्या ये इंटिमिडेशन है? जी हां, ये एक थ्रेट वार्निंग है। सेल्फ इंटरेस्ट, यहां मेरा कोई इंटरेस्ट, अपना कोई फाइनेंशियल, डायरेक्ट फाइनेंशियल या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट थोड़ी आ रहा है। एडवोकेसी, आई एम नॉट प्रमोटिंग द क्लाइंट पोजीशन, जिसके कारण मेरी ऑब्जेक्टिविटी सब्सिक्वेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। C.A. Kaushal, the statutory auditor of FAMO Limited, obtained trade receivable aging report, analyzed it and identified doubtful debt during the audit of account receivable balances. ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट कलेक्ट की है और उसको एनालाइज किया है और डाउटफुल डेट आइडेंटिफाई करे हैं। डाउटफुल डेट, तो आप क्या कर रहे हैं? वैल्यूएशन, बिल्कुल। डाउटफुल डेट आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसका प्रोविजन बनेगा, उसका प्रोविजन बनते ही ट्रेड रिसीवेबल की नेट इफेक्टिव बैलेंस कम होगा। राइट एंड ऑब्लिगेशन, नहीं, ये तो मैं चेक नहीं कर रहा। ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट से आप उसकी एज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस भी आइडेंटिफाई नहीं हो रही।
तो क्या आइडेंटिफाई किया जा रहा है? वैल्यूएशन आइडेंटिफाई हो रही है। ठीक है, तो ये तो थे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं। RST Limited, a retail company, has set up internal control requiring all invoices to be stamped and signed by an authorized person in goods receiving section of the company, stating the date and time of receiving goods in premises to ensure that only purchase bills are produced for the payment for which the goods have actually been received. So only the bill जिनके against goods received हो चुके हैं, they are produced for the payment only. During the audit, auditor find that 2 employees, purchasing manager and account clerk, have worked together to bypass this control, submitting fake invoices. परचेज मैनेजर और अकाउंट्स मैनेजर आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कंट्रोल्स को बाईपास कर रहे हैं, दैट रिजल्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स दैट वर नेवर रिसीव्ड। परचेज मैनेजर ने परचेज बिल बनवा दिया, अकाउंट्स मैनेजर ने उसकी पेमेंट करवा दी, गुड्स आए नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द, अच्छा यहां से देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, और वो क्या है कि ऊपर जो फैक्ट्स दिए हुए होते हैं या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, कई बार वो नीचे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से अलग हो रहा होता है। तो आपको जो क्वेश्चंस की लास्ट लाइंस हैं जहां पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, उसे एब्सोल्युटली एनालाइज करना है, उसमें कहीं पर कोई भी चीज नहीं इग्नोर करनी। यू आर रिक्वायर्ड टू, यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ऊपर वाली चीजें इग्नोर करनी है, एक बार को कर दो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट एज पर SA 200 when it comes to ensuring the reliability of financial statement। तो एक पार्ट तो आ गया, आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट बताने हैं एज पर SA 200। Also explain why auditor can provide only reasonable rather than absolute assurance that the financial statements are free from the material misstatement due to fraud or error in the context of the given situation. Auditor is not able to obtain absolute assurance, वो reasonable assurance ले सकता है। ऐसा क्यों? Because audit suffers from some inherent limitations, like nature of financial reporting, nature of audit procedures, cost benefit analysis, timeliness of financial reporting, audit not in the nature of investigation, and other factors। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है, एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट और दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में इन्होंने यही चीजें कवर की हैं या कुछ और बताया है? पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव्स ही बताए हैं एज पर SA 200। नंबर 2 पर प्रोसेस ऑफ ऑडिट suffers from certain inbuilt limitations। कौन कौन सी? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, timeliness of financial reporting and decrease in the relevance of information over the time and future event। आगे उसी की एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। दो चीजें हैं,
एक ऑडिट के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन, और दोनों ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर अलग अलग कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट और फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कि ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। चलिए आरटीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, अ मीडियम साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, the engagement partner is responsible for directing and supervising the work of engagement team. The team includes both experienced member and new trainee. Additionally, certain areas of audit also identified as high risk like revenue recognition and inventory valuation due to recent change in ABC Limited accounting policy. What? अब आ गया क्वेश्चन, what factors should the engagement team member consider when determining nature, timing and extent of direction, supervision and review of engagement team work? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के दौरान भी बताया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। सो ऑडिट एंगेजमेंट टीम की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू को के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिटरमिन करने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट वेयर द टीम मेंबर्स टू बी एंगेज्ड, assessed risk of material misstatement and competency and capability of engagement team members। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। ये इससे पहले एमटीपी मई 20, आरटीपी नवंबर 20 एंड आरटीपी नवंबर 21 में आ चुका है। ऑडिटर शेल प्लान नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट ऑडिटर नीड्स टू कंसीडर। कौन कौन से फैक्टर? size and complexity of the entity, area of the audit, assessed risk of material misstatement, capabilities and competency of team member performing the engagement। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 का है, the auditor of EFG Limited, a company engaged in the tours and travel, needs to obtain an understanding of the company control environment. To obtain understanding of the company control environment. To do this, auditor evaluate whether the management has created a culture of honesty and ethical behavior, and the strength in control environment elements collectively provide an appropriate foundation for the other components of the internal control। बिल्कुल सही बात की है। तो नाउ अब पूछा गया व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे? नंबर 1 एंड नंबर 2, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो आपको ध्यान होगा इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट हैं? 5, 1 2 3 4 5। पहला कंपोनेंट आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का।
दूसरा कंपोनेंट आता है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तीसरा कंपोनेंट आ जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन। नंबर 4 पर आ जाती है कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट टू ऑडिट। नंबर 5 पर आ जाता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट? कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स मैनेजमेंट का गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, एटीट्यूड, awareness and actions of TCWG and the management। दो मेन एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल वर्किंग इन द एंटिटी। फिर आगे एक बात करता है, एलिमेंट्स बताइए कंट्रोल एनवायरनमेंट के। इनके एलिमेंट्स में नंबर 1 कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कंपिटेंस, पार्टिसिपेशन बाय दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट फिलॉसफी, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट हैं। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। एमटीपी मार्च 18, मई 20, आरटीपी मई 18, एमटीपी अगस्त 18, मार्च 18, आरटीपी नवंबर 19 और अब जनवरी 25। So control environment includes governance and the management function, attitude, awareness and action of TCWG and the management. Control environment sets the tone of an organization including the control consciousness of its people. Control environment include the following elements. Number 1, communication and enforcement of integrity and the ethical values, commitment to competency, participation by TCWG, management philosophy and operating style, organizational structure, assignment of authority and responsibility, HR policies and the practices। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन जितने मार्क्स का आए, 3 का या 4 का, उसके हिसाब से अपने आंसर्स की लेंथ रखनी है। अननेसेसरली सातों के सातों पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सोचो कि सारे पॉइंट आते हैं मुझे, मैं तो सारे लिख दूंगा। नंबर 1, कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड है? 1 नंबर। और इसके एलिमेंट बताओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 एलिमेंट, इससे ज्यादा कवर करने की आवश्यकता नहीं है आपको एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीए मुकुल एक्सटर्नल ऑडिटर है, बेज लिमिटेड, अ लार्ज कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। After assessing the internal audit function of the company, Mukul decided to use the internal auditor of the company to provide the direct assistance. Okay. In this context, what? यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ। What is the meaning of direct assistance? एक तो आपको बताना है डायरेक्ट असिस्टेंस का मीनिंग। डायरेक्ट असिस्टेंस का मीनिंग है यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को यूज करना टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। Comment whether prior to using the internal auditor for direct assistance, Mukul is required to obtain any written agreement। दो रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं
एक इंटरनल ऑडिटर के साथ और दूसरा वहां की एंटिटी के साथ। इंटरनल ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट होता है दैट दे विल एंश्योर दैट confidentiality of the information acquired by performing the audit procedure under the direction supervision of the external auditor। और दूसरा एंटिटी के अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से that they will allow the internal auditor to follow the external auditor instructions। दो रिटर्न एग्रीमेंट्स। क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, आगे कहता है गिव एग्जांपल्स of the procedure in which CA Mukul should not use the internal auditor to provide the direct assistance। कहां कहां पर आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं कर सकते, किन ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए? वो प्रोसीजर जहां पर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो प्रोसीजर जिनमें हायर लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस किया गया है, वो प्रोसीजर जहां पर इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एंड वो प्रोसीजर जो एसए 610 में एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद परफॉर्म करने हैं टू इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ है हमारा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये रहा। Moon Limited, of which you are the statutory auditor, have internal audit being conducted by an outside agency। आप डायरेक्ट असिस्टेंस का यूज करना चाहते हैं, उसके फैक्टर बताएं। तो इसमें एक पॉइंट तो आ गया आपका एग्रीमेंट्स का। ऑडिटर आपको दो रिटर्न एग्रीमेंट्स लेने हैं फ्रॉम authorized representative of the entity that internal auditor will be allowed to follow the external auditor's instruction and entity will not intervene in the work of internal auditor performed under the directions of external auditor। दूसरा रिटर्न एग्रीमेंट आप इंटरनल ऑडिटर से लेंगे दैट दे विल कीप द कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, they will keep the confidentiality of the matters as instructed by the external auditor and यदि उनकी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट आता है दे विल इन्फॉर्म टू एक्सटर्नल ऑडिटर। उसके बाद कौन से प्रोसीजर्स हैं जहां पर इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ली जा सकती? प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट, प्रोसीजर दैट आर रिलेटेड टू हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, procedure related to work on which the internal auditor is already been engaged or involved, procedure that are related to decisions जो external auditor को इस FA की according लेने हैं for evaluation of internal audit functions। तो ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन था SA 610 पर बेस्ड। आगे चलते हैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द रैपिड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड CA अक्षत notice that inventory of raw material and consumables and work in progress amounting to 0.5 crore and 0.25 crore appear in the financial statements of the company as on March 31, 2024. He wants to verify the above mentioned inventory has been valued appropriately. How should he proceed to verify the above? क्या verify? इन्वेंट्रीज कौन सी? रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल एंड WIP, इनकी वैल्यूएशन एप्रोप्रिएटली हुई है। यह क्वेश्चन भी चैप्टर 5 का हमारी कवरेज में था पहले, और ये शायद एग्जाम में भी आया हुआ है पहले क्वेश्चन। चैप्टर 5 इन्वेंट्री का नवंबर 23 के एग्जाम में रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स की वैल्यूएशन के ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, एंड जनवरी 21 के एग्जाम में
WIP की वैल्यूएशन के ऑडिट प्रोसीजर्स है। चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। पहले रॉ मटेरियल। ऑडिटर, you need to ascertain what elements of cost are included in the value of a raw material. और आपको पता है as per accounting standard 2, any cost that is incurred up to the stage goods reaches the godown location are forming part of cost of inventory. यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज किया गया है, then inquire the basis of standard, how these are compared with the actual cost, and how variances are analyzed and accounted for or treated in the books of account. Test check the cost price used with the purchase invoice received in the month prior to counting. Follow up the valuation of all damaged or obsolete inventories during the observance of physical counting so as to determine a realistic NRV. तो एक पॉइंट, what are the elements of cost that are forming part of cost of inventory? In case standard costing method is used, examine the basis of standard, how they are compared with actual, and how variances are analyzed and accounted for. Test check the cost price with the purchase invoice. Follow up the valuation of all damaged or obsolete inventories. एग्जाम में सिर्फ रॉ मटेरियल का क्वेश्चन आए, चारों पॉइंट लिखिएगा। WIP का क्वेश्चन आए तो 4 पॉइंट लिखिएगा। रॉ मटेरियल और WIP दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए जैसा RTP में है तो दोनों के 2-2 पॉइंट बस। WIP, attend the inventory count in accordance with SA 501 and understand how WIP is arrived at. Estimate, evaluate work of management expert if engaged. How the various stages of the productions are measured, and in case any estimate is being taken, understand the basis for such estimates. Ascertain what elements of costs are included. यदि ओवरहेड को इंक्लूड किया गया है, बेसिस जिस पर ये इंक्लूड किए गए, कंपेयर द बेसिस विद द अवेलेबल कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल डेटा. एंश्योर that material cost does not include any abnormal wastage factors. तो ये एक्सक्लूड होना चाहिए abnormal wastages. तो ये चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन था, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स का एंड वैल्यूएशन ऑफ WIP का. चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 6 का क्वेश्चन. CA Ripun completed the audit of a listed company and the audit report issued on July 17. However, he had not properly organized the audit working paper. 17th जुलाई को audit report issue हो चुकी है, including records of discussion with the management, audit procedures performed, conclusion reached. उसने किसी भी चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया. More than 6 months after issuing the report, he received a letter from the regulator in connection with the audit of the company, requesting him to share the copy of audit file. अब फंसोगे ना. ऑडिट रिपोर्ट की डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के विद इन 60 डेज आपको फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल करना होता है. यहां तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के 6 महीने से ज्यादा हो गए, आपने कुछ किया ही नहीं. ओके, अब आपको लेटर मिला तो रिपुन ने क्विकली असेंबल किया ऑडिट फाइल को, adding some paper he thought were necessary, but he used the current date. अब और ज्यादा फंसेगा. On these newly added document, he then sent the audit file to the regulator, discussed the issues involved relating to audit documentation and assembly of the final audit file. तो असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल का टॉपिक है
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, चैप्टर नंबर 6 में हमने इसे कवर अप किया था। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। ऑडिटर शैल असेंबल audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the audit file on a timely basis after the date of the audit report. As per the requirement of SQC 1, firm should establish the policies and the procedure for the timely completion of the assembly of audit file, an appropriate time limit within which to complete the assembly of final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of audit report. Completion of assembly of audit file after the date of audit report is an administrative process which does not involve the performance of new audit procedure. अब आपको ध्यान हो, यदि इसी का एमसीक्यू भी आया था जिसमें रिकैलकुलेशन थी, डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन थी, इंटरेस्ट की, तो ये आप नहीं कर सकते। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है सिर्फ। इट डज नॉट रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ एनी न्यू ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉइंग एनी न्यू कंक्लूजन। हां, चेंजेस आप कर सकते हैं। कैसे? डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग द सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, पढ़ा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एक ऑप्शन थी ये। Sorting, collating and cross-referencing the working paper, signing off on completion checklist, documenting audit evidence that auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of engagement team। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने मोर देन 6 महीने हो चुके हैं ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। जब रेगुलेटर की तरफ से फाइनल ऑडिट फाइल की डिमांड आ गई तो उसने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, जो उसको ठीक लगा उसने इंक्लूड कर दिया और उस पर आज की डेट डाल दी। नो, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये असेंबली हो जानी चाहिए थी। देखो इसका क्या आंसर आरटीपी ने दिया है। Auditor shall assemble the audit documentation and complete the administrative process on a timely basis. SQC 1 का प्रोविजन आ गया, appropriate time limit 60 का आ गया, चेंजेस की बात आ गई। In the given case, even after passage of more than 6 months, रिपुन ने audit file assemble नहीं की। Now, it shows that part of audit documentation has been prepared afterward, putting a question mark on the quality of audit. तो ये था हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। कौन सा क्वेश्चन है? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी, कार्तिक हैज नोटिस्ड that company turnover fall drastically as compared to last 3 years due to loss of major market and key customers. Turnover drastically down है। Company is in need of fund for new product development, but bankers are not willing to lend the financial support. Which additional audit procedures need to be performed as per SA 570? SA 570 है हमारा किसका? गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न का जो क्या कहता है कि ऑडिटर आपको एप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है एज टू द basis on which the going concern assumption is used by the management for the purpose of preparation of financial statement. Whether the basis जिस पर management going concern assumption को use कर रही है, is it appropriate to use that going concern basis of accounting? लेकिन यदि कोई significant event आपके सामने आते हैं that cast doubt on the entity ability to continue as a going concern,
देन आपको कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। तो यहां पर उन्हीं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स की आपसे बात की गई है कि आप कौन से एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे। नंबर 1, यदि मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं कर रखी है एज टू द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिए टू मेक इट्स असेसमेंट। मैनेजमेंट के प्लान्स फॉर द फ्यूचर उन्हें इवेलुएट करिए एंड डिटरमिन whether the outcome of this plan will improve the future situation, and whether these plans are feasible in the circumstances। ये पॉइंट पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां पर मैनेजमेंट ने, एंटिटी ने एक कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखा है, analysis of the forecast is a significant factor in considering the future outcome of the situation, auditor shall evaluate the reliability of the data that is generated to prepare this forecast। कहां कैश आएगा, कहां कैश जाएगा, उसके लिए जो डेटा यूज किया गया है उस डेटा की रिलायबिलिटी को इवेलुएट करिए। डिटरमिन whether there is adequate support for the assumptions on the basis of which the forecast is being prepared। तो आपको अंडरलाइंग डेटा की रिलायबिलिटी को इवेलुएट करना है एंड अजम्पशन, जिस बेसिस पर यह फोरकास्ट बनाया गया है, क्या ये अजम्पशन एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सम ऑब्जर्वेशन। जिन अजम्पशंस पर फोरकास्ट बनाया गया है उस अजम्पशंस की रीजनेबलनेस को आपको इवैल्यूएट करना है। कंसीडर whether any additional facts or information become available since the date on which the management made its assessment, request the WR from the management or TCWG regarding their plans for future action and feasibility of their plan। तो देखो बड़ा आसान है ये टॉपिक याद करने के लिए। नंबर 1, यदि मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं कर रखी, नो असेसमेंट इज बीइंग डन बाय द मैनेजमेंट फॉर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देन रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट फॉर द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 2, यदि मैनेजमेंट ने कोई एक्शन प्लान बना रखा है फॉर द फ्यूचर एक्शंस, उस एक्शन प्लान को चेक करिए, उस एक्शन प्लान का आउटकम क्या सिचुएशन को इंप्रूव करेगा एंड व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ दैट एक्शन प्लान। और इसी एक्शन प्लान के ऊपर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए एज टू द वायबिलिटी फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स। नंबर 4, यदि मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखी है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, क्या कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस एडिशनली कैरी ऑन या एग्जीक्यूट हुए हैं एंटिटी के अंदर, हैपेंड इन द एंटिटी सब्सिक्वेंट टू दैट असेसमेंट। और एक पॉइंट तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो फोरकास्ट का, उसके डेटा की रिलायबिलिटी और जिन अजम्पशंस पर यह फोरकास्ट बनाया गया है, क्या these assumptions are adequately supported। तो ये 5 फैक्टर है, नो असेसमेंट, असेसमेंट, एक्शन प्लान एंड कैश फ्लो फोरकास्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, 2 क्वेश्चन है इसमें। The nature of the comparative information that is presented in the entity financial statements depends upon the requirements of FRF. There are 2 different broad approach to the auditor's reporting responsibility in respect of the comparative information। 2 अप्रोच है बिल्कुल सही, corresponding figure and comparative financial statement। Explain difference between the approach stating the essential audit reporting। corresponding figures
audit report does not include any reference to the corresponding figures. क्यों? Corresponding figures are integral to the current period financial statement. However, comparative financial statements के अंदर reference of each financial period for which the comparative financial statements are prepared. Define comparative information एंड ऑडिट प्रोसीजर। तो तीन रिक्वायरमेंट है, एक डिफरेंस, डेफिनेशन, ऑडिट प्रोसीजर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है और ऑलरेडी हमने इसे भी कवर अप किया हुआ है। एसेंशियल रिपोर्टिंग डिफरेंस, जो एसए 710 का सबसे पहला क्वेश्चन है, उसी में सब कुछ है। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स that are included in the financial statement in relation to one or more prior period in accordance with the applicable FRF. फिर आ जाएगा इसका रिपोर्टिंग डिफरेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर सिर्फ करंट पीरियड को रेफर करती है, लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर की ओपिनियन रेफर्स टू द ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। डन। फिर आएगा इसका प्रोसीजरल पार्ट। तीन चीजें हैं क्वेश्चन में, मीनिंग, रिपोर्टिंग डिफरेंस एंड ऑडिट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण, a CA student reviewing an audit report of the company when she noticed an 18-digit alphanumeric code below the auditor's signature and membership number. She wants to understand the purpose and importance of this number. UDIN. For audit report only? No. All reports and certificates. All reports and certificates. So as to ensure the genuineness of the reports and certificates issued by only chartered accountant. कोई भी नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से कोई रिपोर्ट सर्टिफिकेट ना इशू कर दे, उस पर्पस के लिए यूडीआईएन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ कोलकाता बेस्ड डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं। The funds were distributed to various NGOs operating in Bihar to support the relief effort. You have been appointed as the auditor. आपको क्या करना है? Draft an audit program to audit the receipt of donations and remittance of the collected fund. I think ये तो सेम क्वेश्चन हमारा डिस्कस्ड है क्लास में। डोनेशन की रिसीट्स की ऑडिट एंड रेमिटेंस, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है। ऑडिट ऑफ डोनेशन रिसीट्स एंड रेमिटेंस ऑफ द डोनेशन टू डिफरेंट एनजीओ। तो ये तो बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑडिट ऑफ बैंक, Agrim CA student, part of engagement team conducting audit of Madurai branch. CA Bhuvan engagement partner asked him to verify the provision made by the branch NPAs. चार क्लाइंट के नाम है, D1 कैटेगरी, सबस्टैंडर्ड, D2 कैटेगरी, लॉस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रोविजन। D1 मींस अप टू 1 ईयर वाला, D2 1 to 3 ईयर, D3 मोर देन 3 ईयर। Engagement partner already verified NPA classification, outstanding amount relating to each NPA except ASD. They are fully secured. पहले वाले तीनों fully secured है। However, only personal guarantee net worth of proprietor 50 लाख अवेलेबल है ASD में। कमेंट, ये सब सिक्योर्ड है, तो डाउटफुल में 25%, सब स्टैंडर्ड में 15%, डाउटफुल कैटेगरी 2 40%, लॉस 100%। यही है ना प्रोविजन जो बनेंगे।
प्रोविजन प्रोविजन कहाँ गए प्रोविजंस, ये रहे। सबस्टैंडर्ड 15, डाउटफुल के सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर 25, फिर 40, फिर 100, लॉस पर 100। तो इस केस में 10 का 25% 2.5 लाख एक्सेस बना रखा है। 50 का 15% 7.5 ओके। 30 का 14% 12 एक्सेस बना रखा है 18 का। 1 का 100% ओके ओके। सो this is about the question on NPA. Agrim is in dilemma regarding the classification of above accounts as NPA, although these are fully secured. Guide NPA क्लासिफिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि असेट्स फुल्ली सिक्योर्ड या गारंटीड है तो ही वो एनपीए बनेंगे। एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए कब? इफ द इंटरेस्ट or principal amount remains overdue for a period more than 90 days, या वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर आउटस्टैंडिंग मोर देन ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट। तो जरूरी नहीं है कि असेट्स आर लोन्स आर फुल्ली सिक्योर्ड और गारंटी इज बीन अवेलेबल विद द बैंक कि ये अकाउंट एनपीए क्लासिफाई नहीं हो सकते। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। इन्होंने क्लासिफिकेशन भी है और एनपीए का प्रोविजनिंग भी है। एनपीए के प्रोविजन आ गए पहले तो 25, 40, 100। एके इंडस्ट्रीज में 2.5 लाख का प्रोविजन चाहिए, 5 बना रखा है। 7.5 चाहिए, करेक्ट है। 12 लाख का बनाना था, 30 लाख का बना रखा है। एएसडी में 100% चाहिए, करेक्ट। क्लासिफिकेशन एज एनपीए should be based on the record of recovery. Availability of security or net worth is not considered for the purpose of treating the advance as NPA. Hence, these accounts have been classified as NPA on the basis of record of recovery, although these accounts are fully secured or guaranteed. चलिए चैप्टर 11 के क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा। सीए सुधाकर appointed as the auditor of Amro Limited. Before accepting the appointment, he learned that his cousin, who held shares in the company and recently passed away without children, named him as the nominee for the share having substantial value. Although holding such share through a distant relative does not violate the legal provision or affect his independence, this unexpected inheritance placed him in a dilemma. कजन की डेथ हो गई, पास्ट अवे, विदाउट चिल्ड्रन, नॉमिनी ये है, तो ये कौन बन जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। और यदि आपके पास कंपनी के शेयर है तो इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हैं टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। एडवाइस हाउ शी शुड डील विद दिस सिचुएशन। सेल करे इन शेयर्स को। सेफगार्ड हिज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के सेफगार्ड्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस के सेफगार्ड्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लो क्लास की इंपॉर्टेंट मार्क भी है। तो ये तो ऑलरेडी हमारा क्लास में डिस्कस्ड है क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो लगभग आरटीपी में ऐसा कुछ भी नया हमारे सामने नहीं आया जो आपने अपनी रेगुलर क्लासेस के दौरान ना कवर किया हो। बट स्टिल थ्योरेटिकल पेपर है, रिवीजन की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है आपको। और रिवीजन इस तरीके से कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन को क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएं और सही आंसर सेलेक्ट करें। एंड नंबर 2,
डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के 3 to 4 मार्क्स आपको 3 to 4 पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। सो प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी और उतनी ही चीजें माइंड में सेट भी होंगी। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर, और नेक्स्ट सेशन मॉक टेस्ट पेपर जब हो जाएंगे तो उसके ऊपर कंडक्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।